गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का टॉपिक मोशन। मोशन फिज़िक्स का सबसे पहला टॉपिक है जो कि हम क्लास 9th में पढ़ते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक टर्म समझते हैं रेस्ट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं करता है तो वो रेस्ट पर होता है। फॉर एग्जाम्पल द बुक्स इन योर रूम, द chair in your room, the table in your room. If you will not apply any force on them, they will not move on their own, right? So this condition of the object is called rest. जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर रहा है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो वो किस पर है? रेस्ट पर है। और जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है टाइम के साथ में और अपनी सराउंडिंग के साथ में, तो उसे हम कहते हैं कि वो मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, द बॉय राइडिंग द बाइसाइकिल, एंड इफ यू सी ऑन द रोड यू विल सी many vehicles are moving there. So these all are example of motion, right? Now motion is of different types. Let's see. There are three types of motion. First one is translatory motion, second is circulatory, and third one is vibratory. Let's understand the translatory motion. Translatory motion is also divided into two more types, which we will discuss in the next slide. In some words I will say that if any objects move in a straight path or in a curved path, then it's said to be in translatory motion. And when the object moves in a circulatory path, for example earth is revolving around the sun in a circular path, similarly the moon is revolving around the earth in a circular path. So these all are example of circulatory motion. And one more example, if you tie a stone with a thread and you give it some force, you will see it will also move in a circular path. So this is also an example of circulatory motion. Next one is vibratory motion. You have seen the vibratory motion in springs. If you apply some force on a spring, it will move backward and forward. So this backward and forward motion is called vibratory motion. You have seen many musical instruments, for example guitar, sitar, veena. Each and every musical instrument is having some string on it, and when we apply some force on it, they vibrate, and because of that music produces in them. So these are some example of vibratory motion. Reference point. When we want to know that how much distance away any object is from us, then we select a reference point. Or to find out the location of any object, we specify a reference point. For example, the school is 4 kilometers away from my home, but it is 3 kilometers away from the temple. So here we have two kinds of reference point, my home and the temple. Both of them are the reference point, and according to these reference point we have different kind of distance for the school, but the school is not moving from its place. तो रेफरेंस पॉइंट्स एक्चुअल में होता क्या है? रेफरेंस पॉइंट का मतलब है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को पता करना चाहते हो, पहले आप एक रेफरेंस पॉइंट बोलते हो और उसके अकॉर्डिंग आप उसका लोकेशन बताते हो. जैसे कि मेरे घर से जो मिल्क शॉप है वो 5 किलोमीटर दूर है, तो मिल्क शॉप कितनी दूर है? 5 किलोमीटर दूर है. तो यहाँ पर घर क्या है? रेफरेंस पॉइंट है. सिमिलरली जैसे आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो सबसे पहले आप 0,0 डिफाइन करते हो, उसके बाद में आप 4 मार्क करते हो एक्स एक्सिस पे, 5 मार्क करते हो वाई एक्सिस पे, और दोनों का जो पॉइंट होता है उसको 4,5 लिखते हो. तो यहाँ पे ओरिजिन ही क्या है? यहाँ पर ये रेफरेंस पॉइंट है. अब आपको समझ में आया होगा आई होप सो. मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन किसका टाइप है? रेक्टिलिनियर मोशन टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन का. मैंने आपको बताया था ट्रांसलेटरी मोशन दो तरह के होते हैं, एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन और दूसरा होता है कर्वीलिनियर मोशन. कर्वीलिनियर मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट किसी कर्व पाथ को
फॉलो करता है। जैसे कि आप एक कार को अगर मूव करते हुए देखें तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव होती रहती है, और जैसे ही कहीं पर भी उसे टर्न लेना होता है तो वो एक कर्व पाथ को फॉलो करती है, तो उस वक्त जो वो मोशन करती है वो कर्वीलिनियर मोशन होता है, और जब तक वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तब तक वो रेक्टिलिनियर मोशन में होती है। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है? बहुत इजी टर्म है डिस्टेंस, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, आपने क्लास 6 में 8 में बहुत बार पढ़ा है डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि अगर मेरे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच में एक ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो एक्चुअल पाथ, एक्चुअल लेंथ ही क्या है? डिस्टेंस कवर्ड है। हो सकता है यही ऑब्जेक्ट इस तरह से डिस्टेंस कवर करे, तो अब यहाँ पर एक्चुअल पाथ फॉलो ये वाला पाथ हो गया, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो गया? अब चेंज हो गया। सिमिलरली ए टू बी जाने के लिए ये भी एक डिस्टेंस है, तो यहाँ पर क्या है? अलग अलग पाथ हैं, जो पाथ हमारे ऑब्जेक्ट ने कवर किया है वही क्या हो जाएगा? हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, मान लो ऑब्जेक्ट ने अगर ये वाला पाथ फॉलो किया है तो हम बोलेंगे ये डिस्टेंस है, अगर ऑब्जेक्ट ने ये वाला पाथ फॉलो किया है तो हम बोलेंगे ये डिस्टेंस है। यानी हम उसी लेंथ को मेजर करेंगे जो कि ऑब्जेक्ट ने पूरी तरह उसने कवर की है। ठीक है, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है मीटर, और डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब वो क्वांटिटीज़ जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती हैं, उनके पास सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हम स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा, और नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी और मोशन चैप्टर के कुछ और बेसिक्स को। थैंक यू।